Hello, good morning. How are you, my legends? Hope that you are doing great. Today, I'm here with new lecture, and this lecture is about passive voice. We have already started a series of lecture about passive voice. So today we are going to understand past perfect tense in the past future independent tense. Now it is going to be finished very soon, and then we will move towards other sentences and structures. We will change them into passive voice. First, there is past perfect tense. How we change past perfect tense into passive voice. First of all, we have to identify its Urdu identification in Urdu. Its Urdu identification is chukata, chukiti, chukete. This is the Urdu identification of past perfect tense. And second one, we have it is helping verb. Helping verb of past perfect tense is had. While changing had into passive voice or changing past perfect into passive voice, we should change had into had been. It means that had is being replaced by had been. And as you know that a third form verb is used in past perfect tense, so third form verb does not change into passive voice. It remains same. And then we use by and then object. Okay, we know we have already a verb that is a third form verb. So third form verb remains unchanged into passive voice. I have given you two sentences of each sentence, positive, negative, and interrogative. And each sentence contains a separate verb, a separate structure. But the rules everywhere are same in passive voice. While changing these sentences into passive, we change object into subject and subject into object. And third form verb is already there. Now, the first sentence is they had played hockey. वो hockey खेल चुके हैं. Its Urdu identification is chukata, chukiti, chukete. If a sentence ends with chukata, chukiti, chukete, so it means that this sentence is of past perfect tense. The first sentence is they had played hockey. Now how we can change this sentence into passive voice? Hockey is object and they is subject. While changing this sentence into passive voice, we change they into hockey and hockey is changed into they. Now let's change it. Hockey had been played by them. Okay, remember one thing that the Urdu identification of past perfect tense is chukata, chukiti, chukete. While changing into passive voice, we should add ja. Word ja is used with chukata, chukiti, chukete in passive voice. So the sentence translation is they had played hockey, वो hockey खेल चुके हैं. Now look at its sentence. वो hockey खेल चुके हैं. This is positive sentence. This is active sentence. And how we can change it into passive while identifying its Urdu identification. Hockey उनके ज़रिए से खेला जाता है. Hockey उनके ज़रिए से खेला जाता है. So Urdu identification is खेला जा चुका. हाकी उनके ज़रिए से खेला जा चुका था. सॉरी, हाकी उनके ज़रिए से खेला जा चुका था. यहाँ पर भी मैंने क्या इस्तेमाल किया? चुके हैं इस्तेमाल किया. सो इट शुड नॉट बी चुके हैं, इट शुड बी चुके थे. वो हाकी खेल चुके थे. In passive voice we have hockey उनके ज़रिए से खेला जा चुका था. सही है? It has been changed. Now the concept is that we use the word ja with Urdu identification into passive voice. Okay, now second sentence is she had cooked rice. Rice is singular, so rice should be capitalized here. Rice had been cooked. Rice had been cooked by her. Now what is its Urdu identification? She had cooked rice. वो चावल पका चुकी थी.
while changing it into passive voice, what should be its Urdu identification? चावल उनके ज़रिए से पकाया जा चुका था. It means that just we use ja with Urdu identification. And there is negative sentence, you had not denied me. आप मुझसे इनकार नहीं कर चुके थे. Now change it into passive voice. It is objective case of I. I is subjective case and me it is its objective case. Say so here should be I had not been denied. I had not been denied by you. वहाँ पर you है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, you आ जाएगा. सही, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस है. दूसरा सेंटेंस है he had not left the class. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, the class had not been left by him. The class had not been left by him. इसको हमने पैसिव में चेंज किया तो यहाँ पर क्या आ गया, had been आ गया. सही है, ये चीज़ आ गई. अच्छा, अब हम इसकी वो चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं. इंट्रोगेटिव फिर से बिल्कुल सेम टू सेम वही पैटर्न है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करें. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड पश्तो बीन स्पोकन. हैड पश्तो बीन स्पोकन बाय अस. लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि यहाँ पर वी है तो ऑब्जेक्टिव किसके आ जाएगा, अस ही आ जाएगा. हैड शी वॉश्ड कार. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड कार बीन वॉश्ड बाय. यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अब आप लोगों को समझ आ गया कि भाई पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन के साथ हम लफ्ज़ जा इजाफा करते हैं. एक इसकी जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसकी हेड है. हेड को हम किस चीज़ में चेंज करते हैं, यानी हेड बी में चेंज करते हैं. ये तो क्लियर हो गया. अब एक और चीज़ है, यानी हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म चूँकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म मौजूद है तो फिर दोबारा फिर यानी इस वर्ब को चेंज करना फिर ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि थर्ड फॉर्म वही आता है तो फिर वही थर्ड फॉर्म रहेगा, यानी इसको चेंज नहीं कर सकते. उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझा होगा. अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. अच्छा, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे चेंज करते हैं, फिर से हमारे पास वही मेथड है, वही प्रोसीजर है, वही तरीका है. सही है. गागी ये इसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन है. होगा, होगी, होंगे, ये फिर से या तो ये आएगा या तो ये आएगा. और पैसिव वॉइस में इसके साथ लफ्ज़ हम जाके इजाफा करते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वेल है. पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हमारे पास क्या रहेगा, इट शुड बी वेल बी. सही है, वेल बी आ जाएगा. फॉर्म पर जो है वो एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में चेंज क्या हो जाएगा. थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो थर्ड फॉर्म आ जाएगा, इसके साथ बाय आ जाएगा, प्लस इसके साथ क्या चीज़ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. अब आते हैं इसकी सेम टू सेम वही पॉजिटिव सेंटेंस है. अभी तो बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि भाई यहाँ पर सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया. सही, अभी तो इतने सेंटेंसेस चेंज किए तो अभी तो आप लोगों को समझ आया होगा. मैं डायरेक्टली सब सेंटेंसेस को चेंज करता हूँ. अभी आप लोगों ने खुद इसमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई कैसे ये चेंज हो गया, सेंटेंस सब्जेक्ट कहाँ चला गया और ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया. पहला सेंटेंस है ही विल हेल्प अस. मैं इसको चेंज करता हूँ, क्या जाएगा, वी विल बी हेल्प्ड बाय हिम. वन सेंटेंस. दूसरा है दे विल डोनेट ब्लड. यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लड विल बी डोनेटेड बाय देम. सही है, ये तो पॉजिटिव हो गया. अब इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन कैसे आ जाएगी, ये थोड़ा सा समझाना पड़ेगा. ही विल हेल्प अस, इसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो हमारा मदद करेगा. सही है.
अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते तो क्या हो जाएगा, हमारा मदद उनके ज़रिए से किया जाएगा। इसके साथ किस चीज़ का इजाफा किया, यानी हमारे पास जो वर्ड जा है इसकी हमने इजाफा करी, बाकी पैसिव वॉइस वही है। सही है, यहाँ पर ये चीज़ आ जाए। अब इसकी नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं, शी विल नॉट पनिश अस, पनिश यू। सही है, तो कैसे क्या आ जाएगा, यू विल नॉट बी पनिश्ड, you will not be punished by her। सही है, सेंटेंस है she will not punish you, वो आपको सज़ा नहीं देगी। पैसिव वॉइस में किया जाएगा, आपको सज़ा उसके ज़रिए से नहीं दिया जाएगा। सही है, we will not finish her। अब ये पनिश है, पनिश मीन्स टू ट्रोल समवन, किसी को सज़ा देना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो फिनिश है, फिनिश मीन्स टू एरेडिकेट, टू रिमूव समथिंग और समवन, यानी किसी को रिजेक्ट करना, जड़ से उखाड़ना। सही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, शी विल नॉट बी फिनिश्ड, she will not be, we will not finish her, she will not be finished by us। सही है, ये तो इसके नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब फिर इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव में फिर से यू और यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट है और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब तो वैसे भी स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त तो भी वही हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो भी सेम टू सेम उसी तरह जाएगा। अब यू आ जाएगा, will you be kicked by him। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, will he kick you, will you be kicked by him। दूसरा सेंटेंस है they will read books, यहाँ पर एस लिखा है, बुक्स है, प्लूरल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, will books be क्या आ जाएगा, रीड आ जाएगा। अब रीड का कंसेप्ट क्या है, रीड का कंसेप्ट ये है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे पास जो वर्ब की काइंड्स हैं, सही है, हमारे पास इसकी वर्ब की जो काइंड्स है वो रेगुलर आता है, इसके बाद इरेगुलर आता है, सही है, और इसी के साथ जो है वो हमारे पास मोस्ट रेगुलर आता है, सही है, और मोस्ट इरेगुलर आता है, मोस्ट इरेगुलर। अब फिर ये जो तीन किस्म की जो वर्ब है ये मैं समझाऊंगा कि हमारे पास रेगुलर वर्ब क्या है और इरेगुलर वर्ब क्या है। सही है, ये तो और इसी के साथ जो रेड पेन, रेड मार्कर, हमारे पास रेगुलर वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब क्या है, मोस्ट रेगुलर क्या और मोस्ट इरेगुलर क्या है। ये जो मोस्ट रेगुलर और मोस्ट इरेगुलर है इसको हम ये भी कहते हैं, इसको हम ज़ीरो रेगुलर वर्ब भी कह सकते हैं और ज़ीरो इरेगुलर वर्ब भी कह सकते हैं, ये मैं बाद में समझाता हूँ। अलबत्ता यहाँ पर अभी जो वर्ब आया है हमारे पास रीड, ये हमारे पास क्या है, ये मोस्ट रेगुलर वर्ब है। इसका मतलब है कि दोज वर्ब्स विच ऑल फॉर्म्स आर सेम विद ईच अदर, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो रेगुलर भी कहते हैं और मोस्ट रेगुलर वर्ब भी कहते हैं, दोनों नाम हैं। यानी रीड का रीडिड नहीं आ जाएगा, सही है, वही रीड ही आ जाएगा। सेंटेंस क्या है, विल बुक्स बी रीड बाय, दे है तो दे की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, देम है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो यहाँ पर ये समझ आ गया होगा। विल ही किक यू, क्या वो आपको ठोकर मारेगा, क्या ठोकर उसके ज़रिए से आपको मारा जाएगा। सही है, पैसिव वॉइस में सिर्फ हमने किसी चीज़ का इजाफा कर लिया, लफ्ज़ जाकर इजाफा कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।